Rather, we are the people you're trying to kick out of the country. We are human beings and we are not have to be turned on and off. इस टाइम पे कनाडा के अंदर विंटर्स चालू हो चुकी है, लेकिन जो माहौल है इस टाइम का कनाडा का वो पूरा गर्मा गर्मी वाला है। दिख रहा है क्लियरली कि इलेक्शन आने वाले हैं एंड 4.9 मिलियन लोगों का जो परमिट है वो एक्सपायर होने वाला है 31 दिसंबर 2025 तक। So there are 4.9 million people here temporarily that are supposed to leave by December 31st of next year, 13 months from now. We asked what the plan was to track their departures, and yesterday his immigration minister said, we're just going to take people at their word. तो इस टाइम पे कनाडा के अंदर गर्मा गर्मी वाला पूरा माहौल हो चुका है। एक तरफ जो ऑपोजिशन पार्टी है वो बोलती है कि आप यहाँ से इमिग्रेंट्स को निकालो जितना फास्ट निकाल सकते हो, और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, जो पूरी कमेटी है, वो बोलती है कि हमको एक्सटेंशन दीजिए। तो आज पूरी की पूरी वीडियो में यही सब बातें करनी है कि एक्चुअली इस टाइम पे कनाडा में एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले एक हफ्ते पहले जस्टिन ट्रूडो जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी थी, और जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उनसे कुछ गलतियां हुई थी इमिग्रेशन को लेकर। उन्होंने मास इमिग्रेशन कर लिया, इतनी जरूरत नहीं थी, बहुत ज्यादा लोग को बुला लिया है। ठीक है, अब उस बात को पकड़ लिया है सामने जो ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने मार्क मिलर जो यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर है उनको बहुत ही हार्ड क्वेश्चनिंग करी। उनको पूछा कि इस तरीके से 4.9 लाख को, तो 4.9 मिलियन लोगों को आप कनाडा से निकालोगे, क्या डिपार्चर का प्रोसेस होगा, किस तरीके से पूरा सीन होगा। आप जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए। Number of people who will be on a study permit that's expiring. So those who are expiring the end of December 2025, how many of them will actually leave? Are you saying 100% will be expected to leave, or are you going to send CBSA to chase all 766,000? You know that is not what happens. There are a number of things that occur. Some people actually get renewals. Some people get postgraduate work permits and stay a longer period. And we do work with CBSA to monitor these things. And when Statistics Canada reports on these, they take into account a whole variety of factors in estimating how many people are here and how many people have left. So at the end of this year, 2024, how many international students do you expect to leave, and how many have left so far when their study permits expired? How many have left as So far. of November today? We don't Or have that October number. 1st? Can you provide those to the committee? I don't know. We could look into it. Minister, how can you not know? It's in the immigration levels plan. There's a bunch of charts on page 22 starting about temporary resident immigration to Canada, persons who are in the country. It's in the immigration levels plan. It's in there. So how can you not know what that number would be? There's an order paper question, these government documents that were signed by your parliamentary secretary that were tabled with Parliament that has the numbers. So there's supposed to be expiring study permits in December, 84,642. And then in November, 36,130. In October, 10,182. In the month before, 127,348. So how many of those people are still in the country? How many have received the renewal? And how many of them have CBSA now looking at them? What I can provide to you as a number is the expected decrease over that period over the 3-year period, which is about 450 the first year, 450 the next year. That's net, incoming and outcoming. तो आप इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो कि काफी हार्ड क्वेश्चनिंग करी गई थी। एंड इसके अलावा जो सामने ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर है, जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं सूत्रों के अनुसार, वो भी पूछ रहे हैं कि आपने 4.9 मिलियन लोगों को जो यहाँ पे एंट्री दे दी है, देश की सिक्योरिटी भी खतरनाक हिल चुकी है, बिकॉज आपने 2 IAS लोगों को भी यहाँ पे एंट्री दी थी, तो अब किस तरीके से इसको आप प्रोटेक्ट करोगे, जरा हमको बताइए। ठीक है, About a week ago, Justin Trudeau admitted that he broke our immigration system, and that brings new challenges. His own published documents show there are 4.9 million people here temporarily that are supposed to leave by December 31st of next year, 13 months from now. 4.9 million people. We asked what the plan was to track their departures, and yesterday his immigration minister said, we're just going to take people at their word. He admits that there have been 2 ISIS terrorists allowed into our country. What is the plan to protect our security and reinstate sovereignty over who is in our country? अब सामने दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ब्रैम्पटन में पिछले 3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमको फेयर चांस दो, हमको मौका दो, हमको वर्क परमिट एक्सटेंड करने का एक छोटा सा सुनहरा मौका दीजिए, जिसके तहत हम कनाडा में अपना स्टे बढ़ा सके। Colleges from here go to the countries, organize the seminars in which they promise it as there is a job securities, the future is too good, you can come and you can stay here, you can be the permanent residents. So they promote the study as a pathway to PR.
while another says some graduates are considering other options like further studies, or while she doesn't encourage it, asylum claims. We want to say that we are being forced. That is all of the options that is being sold, not that is being proposed to us. That you can file for a refugee if you are if your status is expiring. We know that that is not a viable option, but still so many of us are going towards that as well. उसके अलावा अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, वो भी जरा आप देखिए. Prime Minister Trudeau and Minister Mark Miller, we ask you to do the right thing today by extending the work permits and ensuring a fair pathway, a fair chance for the permanent residency to postgraduate work permit holders. We are the people you're trying to kick out of the country. We are human beings and we are not have to be turned on and off. तो बस दोस्तों, अब लास्ट में आपको बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इस टाइम पे कनाडा के अंदर इमिग्रेशन का जो ये हाल आप देख रहे हो, जो बेहाल हो चुका है, इसका सिर्फ एकमात्र मेन रीजन ये भी है कि इस टाइम पे यहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं. सामने वाली पार्टी को मुद्दा चाहिए, उनको मुद्दा मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो जी का ही पूरा का पूरा फैसला था कि हम मास इमिग्रेशन करेंगे एंड कनाडा की इकोनॉमी को और तेजी से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट. तो ये सारी की सारी चीजें चलने वाली है. एज अ सजेशन मैं आपको बस एक ही चीज बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास इस टाइम पे वर्क परमिट बचा है, देन यूज इट वेयर यू कैन गेट द पीआर. उसको वेस्ट मत करो. सिंपल सी नौकरी की जनरल जॉब मत करो. अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे सीईसी का स्कोर 540 है एंड आपका स्कोर इस टाइम पे 450 470 है, देन ट्राई टू फाइंड अ जॉब इन ट्रेड सेक्टर और इन हेल्थ सेक्टर. लेकिन उस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम अगले साल यानी जो 2025 आने वाला है उसमें क्या होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मालूम पड़ा है कि स्टेम, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर, इसके भी जो ड्रॉस थे वो 450 के नीचे आते थे, लेकिन अभी बहुत महीनों से इसके ड्रॉ ही नहीं आए हैं. और शायद हो सकता है कि 2025 की जो कैटेगरी बेस की जो लिस्ट होगी उसमें ये 3 कैटेगरी को निकाल दिया जाएगा. तो 3 ही कैटेगरी बचेगी, एक होगी फ्रेंच, एक होगी हेल्थ, एक होगी ट्रेड. अब इसके अंदर भी वर्जन 1 करके इन्होंने लिखा है. मतलब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इस टाइम पे ट्रेड के अंदर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब चाहिए, लेकिन हो सकता है कि अगर इनको प्लम्बर बहुत ज्यादा मिल गए तो उस प्लम्बर को वो लिस्ट से निकाल देंगे, क्योंकि कैटेगरी बनाने से पहले ही इन लोगों ने क्लियरली कहा था कि हम उन्हीं को पीआर देंगे जिसकी जॉब की इस टाइम पे कनाडा के अंदर नेसेसिटी है. तो ऐसा फिक्स तो है ही नहीं कि अगर आप जॉब छोड़ोगे, उस पर्टिकुलर एरिया में जाओगे, देन आपको पीआर कम स्कोर में मिलेगा. लेकिन ट्राई हमेशा यही करो कि भाई ढूंढो वो वाली जॉब, वैसी जॉब ढूंढो, क्योंकि मार्क मिलर ने ऐसा भी कहा था कि जो लोग स्पेसिफिक ट्रेड में है, हेल्थ में है, उनका अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो उनको वो एक्सटेंशन का एक मौका दे सकते हैं. वो 1-2 साल का कुछ एक्सटेंशन का प्रोग्राम अभी लाने वाले हैं. वो थोड़ी बहुत मैंने वीडियो पढ़ी थी. एग्जैक्टली तो मुझे इन डिटेल तो नहीं पता है, क्योंकि मैं इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंट नहीं हूं. तो आप अच्छे से अपने लॉयर को या कंसल्टेंट को पूछ के ही सब अपना फैसला लीजिएगा. बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था. क्या होगा, क्या लगता है आपको, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ हो, आपके सामने उन लोगों के ऑपोजिशन पार्टी के साथ हो, आप देश में बच्चों को रखना चाहिए कि निकालना चाहिए, नीचे कमेंट करिए एंड जरा डिस्कस करते हैं. एंड आपसे फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस.